اب میرا ڈیوٹی پر جانے کو دل نہیں چاہتا، حامد نے ماں سے بات کرتے ہوئے کہا۔ سارا اب بڑی ہوتی جا رہی ہے، آپ کو اور سارا کو اکیلے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ ہماری فکر مت کرو بیٹا، ہم بالکل ٹھیک ہیں، پورا محلہ ہمارے ساتھ ہے، ہر کسی کا آنا جانا ہے ہمارے ہاں۔ میرا کام جو سلائی کا ہے، محلے کی کبھی ایک عورت آتی ہے کپڑے دینے تو کبھی دوسری آ جاتی ہے، یوں رونق میرا لگا ہی رہتا ہے۔ اب تو پورا محلہ مجھ سے ہی کپڑے سلواتا ہے اور اسی بہانے کافی رش رہتا ہے گھر میں۔ تم آرام سے اپنی ڈیوٹی پر جاؤ۔ امی نے بھرپور تسلی بخش جواب دیا۔ امی، لیکن رات کو آپ دونوں اکیلی ہوتے ہیں، میں یہ سوچ کر کافی پریشان رہتا ہوں۔ گلی میں جو نئے لوگ آئے ہیں ان کے لڑکے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، شکل سے ہی آوارہ لگتے ہیں۔ بیٹا، تم ہمیں اللہ کے سپرد کر جاؤ، باقی اللہ جانے اور اس کے کام، بس تم جاؤ، اب ملک کو تمہاری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے امی، پر سارا کا بہت خیال رکھیں، اسکول کے بعد اسے گلی میں ہرگز نہیں جانے دیں، میں فون کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھنا میرے بیٹے، اللہ حافظ امی جان، زندہ رہا تو جلد واپس آؤں گا، میں آپ کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ ویسے آج کے جو حالات جا رہے ہیں، دل تو یہی چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں، اپنی چھوٹی سی بہن کو دنیا بھر کی غلیظ نظروں سے بچا لوں، حامد نے کہا اور دکھی دل سے ٹرین پر سوار ہو گیا۔ آمنہ بیگم محلے بھر کے کپڑے سی کر سارا اور حامد کے اخراجات پورے کرتی۔ یہ سچ تھا کہ محلے میں کچھ نئے لوگ آ بسے تھے جن کے لڑکوں کی آئے دن شکایات سننے کو ملتی رہتی۔ آمنہ بیگم سارا دن سلائی کا کام کرتی رہتی، سارا اسکول سے اکیلی واپس آ جاتی۔ پچھلے کئی دنوں سے سارا نوٹ کر رہی تھی کہ محلے کے کچھ لڑکے اس کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن ڈر کے مارے امی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ یار، بڑی ٹھا قسم کی لڑکی ہے، اپنی اس سے سیٹنگ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ رشید نے سارا کو گلی میں آتے جاتے دیکھ کر کہا، ہو بھی سکتی ہے رشید، تو بس کوشش جاری رکھ، ویسے بھی سنا ہے دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی ہیں۔ بابر نے لقمہ دیتے ہوئے کہا، ہاں جانی، ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں سیٹنگ کرنے کی، دیکھتے ہیں کس کی قسمت کھلتی ہے۔ نورے نے بھی اپنی خباثت دکھاتے ہوئے کہا۔ تینوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ سنا ہے اس کا ایک بھائی بھی ہے جو فوج میں بھرتی ہے، رشید نے بتایا۔ کبھی کبھی آتا ہوگا یار، کون سا یہی رہتا ہے، نورے نے بتایا۔ یہ بھی اچھی بات ہے، تینوں نے کہکا لگایا اور سگریٹ سلگا کر گلی کی نکڑ میں بیٹھ گئے اور ہر آتی جاتی لڑکی کو تاڑنے لگے۔ حامد کو فوج میں بھرتی ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ 1 سال سکون سے گزر گیا، مگر اب ان تینوں لڑکوں کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگا۔ ٹریننگ کے دوران بھی بجھا بجھا سا رہتا۔ یار کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ساتھی عدیل نے پوچھا۔ ہاں یار، محلے میں کچھ نئے لوگ آ گئے، مجھے ان لڑکوں سے خطرہ ہے۔ میری ماں اور بہن اکیلی ہوتی ہیں، میں تمام وقت ان کے متعلق ہی سوچتا رہتا ہوں۔ معاملہ تو ایسا ہی ہے، بس میرے بھائی آیت الکرسی پڑھ کر ان کو اللہ کے حوالے کر دیا کرو، اللہ پاک انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ ڈیوٹی بھی تو دینا پڑتی ہے، ایک فوجی کی اپنی زندگی امانت ہی ہوتی ہے۔
हामिद को अदील की बातों से कुछ हौसला हुआ, अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो देने लगा। तीनों आवारा लड़के सारा के स्कूल आने जाने के औकात में गली के आर पार खड़े हो जाते, तरह तरह की बातें करते। सारा उनकी बातों को इग्नोर करती रहती। बॉर्डर पर हालात काफी संगीन होते जा रहे थे। बहुत से फौजियों को बॉर्डर मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें हामिद भी शामिल था। बॉर्डर पर होने वाली झड़पों में हामिद शहीद हो गया। हामिद की मैयत उसके घर भेज दी गई, जिसे देखकर पूरा मोहल्ला अश्कबार था। मां बहन की तो हालत ही गैर थी। हामिद को फौजी एजाज से स्पुर्दे खाक किया गया। पूरा मोहल्ला इस दुख में शरीक था। ताज़ियत करने वाले कई दिन तक आते रहे। बिलाखिर ये सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता थम गया। जिंदगी मामूल पर आने लगी। सारा फिर से स्कूल आने जाने लगी। अब उसमें पहले जैसी खुद एतमादी ना रही। तीनों आवारा लड़के अब भी उसकी ताक में थे। कुछ सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रशीद ने साथियों से कहा, ये लड़की तो हमें घास तक नहीं डालती, चलो फिर आज रात इसके घर में घुस जाते हैं, फिर देखते हैं कैसे घास नहीं डालती। बाबर ने मशवरा दिया, जो दोनों को पसंद आया। रात के पिछले पहर तीनों आवारा लड़कों ने प्लान के मुताबिक दीवार फलांकने की भरपूर कोशिश की, और वो हर बार ऊंधे मुंह नीचे गिर जाते। यार, छोटी सी दीवार हम फलांक नहीं पा रहे, कितने अफसोस की बात है। चलो ऐसा करते हैं, कल पर छोड़ते हैं, क्योंकि अभी फजर होने को है, नमाजियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। सुबह देखेंगे। इस दीवार से हम क्यों नहीं फलांग पा रहे। अगली सुबह तीनों ने दीवार का जायजा लिया। ये एक आम सी नॉर्मल ऊंचाई की दीवार थी, जिसे फलांकना बेहद आसान था। खैर, आज रात 2 बजे सब तैयार रहना, नूरे ने हिदायत की। प्रोग्राम के मुताबिक तीनों दोस्त रात 2 बजे सारा के घर के पास पहुंच गए और दीवार फलांकने की कोशिश करने लगे। आज भी वही मामला होने लगा। दीवार पर चढ़ते ही मुंह के बल जमीन पर गिर जाते, यहां तक कि नूरे के सर पर गहरी चोट भी लग गई। यार, क्या माजरा है। बालिश्त पर दीवार हम टाप नहीं सकते। धत हमारी जवानी पर, रशीद ने कहा। अब तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है, बाबर ने कहा। एक काम करते हैं, रशीद ने कुछ सोचते हुए कहा। पिछली तरफ साद का घर है, हम साद के घर की तरफ से कूदते हैं। साद के घर आजकल कोई भी नहीं है। तीनों ने इत्तेफाक किया और बात अगले दिन तक चली गई। मोहल्ले में कुछ नए लोग आ बसे थे, जिनके लड़कों की आए दिन शिकायत सुनने को मिलती रहती। आमना बेगम सारा दिन सिलाई का काम करती रहती। सारा स्कूल से अकेली वापस आ जाती। पिछले कई दिनों से सारा नोट कर रही थी कि मोहल्ले के कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन डर के मारे अम्मी को बता नहीं पा रही थी। यार, बड़ी ठा किस्म की लड़की है, अपनी इससे सेटिंग हो जाए तो क्या ही बात है। रशीद ने सारा को गली में आते जाते देखकर कहा, हो भी सकती है रशीद, तू बस कोशिश जारी रख। वैसे भी सुना है दोनों माँ बेटी अकेली रहती हैं। बाबर ने लुकमा देते हुए कहा। हाँ जानी, हम भी ट्राई करते हैं सेटिंग करने की, देखते हैं किसकी किस्मत खुलती है। नूरे ने भी अपनी खबासत दिखाते हुए कहा। तीनों कहका लगाकर हंस पड़े। सुना है इसका एक भाई भी है जो फौज में भर्ती है, रशीद ने बताया। कभी कभी आता होगा यार, कौन सा यही रहता है, नूरे ने बताया। ये भी अच्छी बात है। तीनों ने कहका लगाया और सिगरेट सुलगाकर गली की नुक्कड़ में बैठ गए और हर आती जाती लड़की को ताड़ने लगे।
हामिद को फौज में भर्ती हुए 1 साल गुजर चुका था। 1 साल सुकून से गुजर गया, मगर अब इन तीनों लड़कों की वजह से काफी परेशान रहने लगा। ट्रेनिंग के दौरान भी बुझा बुझा सा रहता। यार कोई मसला है तो बताओ, साथी अदील ने पूछा। हाँ यार, मोहल्ले में कुछ नए लोग आ गए, मुझे उन लड़कों से खतरा है। मेरी माँ और बहन अकेली होती हैं, मैं तमाम वक्त उनके मुतालिक ही सोचता रहता हूँ। मामला तो ऐसा ही है, बस मेरे भाई आयतुल कुर्सी पढ़कर उनको अल्लाह के हवाले कर दिया करो। अल्लाह पाक उन्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखेगा। ड्यूटी भी तो देना पड़ती है, एक फौजी की अपनी जिंदगी अमानत ही होती है। हामिद को अदील की बातों से कुछ हौसला हुआ, अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो देने लगा। तीनों आवारा लड़के सारा के स्कूल आने जाने के औकात में गली के आर पार खड़े हो जाते, तरह तरह की बातें करते। सारा उनकी बातों को इग्नोर करती रहती। बॉर्डर पर हालात काफी संगीन होते जा रहे थे। बहुत से फौजियों को बॉर्डर मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें हामिद भी शामिल था। बॉर्डर पर होने वाली झड़पों में हामिद शहीद हो गया। हामिद की मैयत उसके घर भेज दी गई, जिसे देखकर पूरा मोहल्ला अश्कबार था। मां बहन की तो हालत ही गैर थी। हामिद को फौजी एजाज से स्पुर्दे खाक किया गया। पूरा मोहल्ला इस दुख में शरीक था। ताज़ियत करने वाले कई दिन तक आते रहे। बिलाखिर ये सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता थम गया। जिंदगी मामूल पर आने लगी। सारा फिर से स्कूल आने जाने लगी। अब उसमें पहले जैसी खुद एतमादी ना रही। तीनों आवारा लड़के अब भी उसकी ताक में थे। कुछ सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रशीद ने साथियों से कहा, ये लड़की तो हमें घास तक नहीं डालती, चलो फिर आज रात इसके घर में घुस जाते हैं, फिर देखते हैं कैसे घास नहीं डालती। बाबर ने मशवरा दिया, जो दोनों को पसंद आया। रात के पिछले पहर तीनों आवारा लड़कों ने प्लान के मुताबिक दीवार फलांकने की भरपूर कोशिश की, और वो हर बार ऊंधे मुंह नीचे गिर जाते। यार छोटी सी दीवार हम फलांक नहीं पा रहे, कितने अफसोस की बात है। चलो ऐसा करते हैं, कल पर छोड़ते हैं, क्योंकि अभी फजर होने को है, नमाजियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। सुबह देखेंगे इस दीवार से हम क्यों नहीं फलांक पा रहे। अगली सुबह तीनों ने दीवार का जायजा लिया। ये एक आम सी नॉर्मल ऊंचाई की दीवार थी, जिसे फलांकना बेहद आसान था। खैर, आज रात 2 बजे सब तैयार रहना, नूरे ने हिदायत की। प्रोग्राम के मुताबिक तीनों दोस्त रात 2 बजे सारा के घर के पास पहुंच गए और दीवार फलांकने की कोशिश करने लगे। आज भी वही मामला होने लगा। दीवार पर चढ़ते ही मुंह के बल जमीन पर गिर जाते, यहां तक कि नूरे के सर पर गहरी चोट भी लग गई। यार क्या माजरा है, बालिश्त पर दीवार हम टाप नहीं सकते, धत हमारी जवानी पर। रशीद ने कहा। अब तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है, बाबर ने कहा। एक काम करते हैं, रशीद ने कुछ सोचते हुए कहा। पिछली तरफ साद का घर है, हम साद के घर की तरफ से कूदते हैं। साद के घर आजकल कोई भी नहीं है। तीनों ने इत्तेफाक किया और बात अगले दिन तक चली।